Good evening, everyone, and welcome to tonight's session of Nutrilite Live 360, where this is going to be the first session of the series. And yes, you may think the topic is what, how, and when to eat. Ekdam simple, sir. But let me tell you, there's a lot to unlearn and learn. So we will be listening to from two esteemed professionals in the nutrition arena, I would say. One who introduced me to health, who will be actually taking you through the whole topic. But before the main presentation, it is our privilege and our, I think we are honored to have our coach and mentor spare a few minutes every Monday, every Friday night to share some very, very key tidbits with us. Let's welcome our mentor, our coach, Farooq Tarapur, who is a double world champion in the sport of sailing with 40 years of international sporting experience to his credit, and Arjuna awardee, Chhatrapati Shivaji Award, many, many awards. But more than anything, he's here to help a lot of us, in fact, millions. The aim is to help every one of us to lead a healthy and medicine-free life. Thank you, and thank you so much, Farooq, for everything that you do. Over to you to share your tidbits. Thank you, Veda, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. And like as I normally say, I hope you had an early dinner, okay, and done some exercise, because there is nothing worse than having a late night dinner and just going to sleep. Not only eating the wrong food at the wrong time, can be dangerous, but even eating the right food at the wrong time can be equally dangerous. All right. Today, what we are noticing is that obesity is on the rise, diabetes is on the rise. And in my opinion, my very humble opinion, diabetes and overweight are not just lifestyle challenges anymore. People don't realize that they are the root cause or the starting points or the telltale signs for cancers. And as we all know, that cancer is the second largest reason why people die today. And we need to be careful. And that is why a topic like today, what, when, and how to eat is so critically important. Because by making simple lifestyle changes, you can really help and protect your health. Uh, I've seen many people when they get diagnosed with cancer, how difficult it is not only for them, but for their families to cope up with it. The financial pressures, the pressures of hospitalization, the pressures of treatments, the lines of treatments. No doubt technology has advanced dramatically, and there are some seriously good outcomes that can be possible. But we also know that in most cases, the outcomes cannot be, very good. So try and protect yourself from these dangerous and deadly diseases, which are written off mostly by saying they are lifestyle challenges. And abhi to ye isse hone wala hi hai. Try and protect yourself, try and protect your friends and family. So listen to Raj very carefully, because what he has to say about this topic will have a tremendous impact, not only on yourself, but the health of your friends and families around you. So over to you, Raj. Thank you very much, Farooq. Thanks for that valuable insight that you always teach us in this community, and how you are empowering all of us to understand this subject called health, and how you've been leading by example and showing us the way forward, that why it is so important, and how we can take charge not only of ourselves but in fact our near and dear ones. So tonight we are going to discuss a very, very important topic: what to eat, how to eat, and when to eat. You know, आप में से कोई अगर नया होएगा तो सरप्राइज हो जाएगा कि इसके भी ऊपर टॉपिक है क्या, या इसके भी ऊपर आर वी गोइंग टू डिस्कस.
But you'll be very surprised when you see the content that you will be seeing it tonight, that how the simple steps can have a significant impact on our health. आज की तारीख में इट इज़ वेरी सिंपल. यू स्पीक टू एनीबडी, उनसे दो तीन सवाल पूछ लीजिए, दैट व्हाट आर योर फूड टाइमिंग्स, लाइक व्हाट डू यू ईट, व्हाट इज़ योर ब्रेकफास्ट टाइम, व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर एंड ऑल दो स्टफ. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन वेरी कन्वीनियंटली प्रिडिक्ट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. इट्स वेरी इजी. सेकेंड पॉइंट, ये जो चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स है, दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. एंड देन वी गेट टू हियर दिस सेकेंड स्टेटमेंट दैट आई जस्ट स्पोक टू माय डॉक्टर एंड ही सेज एवरीथिंग इज फाइन. वो फाइन आज है, बट द डायरेक्शन दैट यू चूज इज गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो जैसे कि आज हम बोले, आज हम फूड के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट मी स्टार्ट टुनाइट सेशन विद अ जोक. राइट, जोक. और ये जोक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हुम आर वी लिसनिंग टू. सो दो दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बहुत अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे होते हैं. एंड सडनली एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, हे, हैव यू हर्ड एनीबडी डाइंग इन अ रेस्टोरेंट while having food? तो द अदर फ्रेंड थिंक्स फॉर अ वाइल एंड ही सेज, नो, नॉट रियली. मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि कोई फूड टेबल के ऊपर कोई मर गया खा के. Then the dost asked the second question, but have you heard people dying in a gym while doing exercise? So बोलता है, या. सो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, यार अब समझ में आया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम फूड में तो है ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो प्रॉब्लम है. सो नो, ये मैं क्यों जोक बोला? बिकॉज परसेप्शंस कैरी अ वेरी वेरी वाइटल रोल. और आज की तारीख में जहां पे एवरीबडी इज फ्री टू गिव सम और द अदर ज्ञान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम सुन किसको रहे हैं एंड व्हाट इज द साइंटिफिक बैक्ड एविडेंस दैट इज सेइंग व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर सेइंग. नॉर्मली ऑन अ सोशल मीडिया व्हाट वी गेट टू सी, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को क्रॉस चेक नहीं कर सकते, हेंस एनीबडी इज गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन. सो नेक्स्ट टाइम आप डिसाइड करिए कि इस डिनर टेबल पे इज इंपॉर्टेंट या एक्सरसाइज में लोग मर रहे हैं, इज दैट व्हाट इज ट्रू, राइट? सो टुनाइट यू आर गोइंग टू सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड व्हेन टू ईट. सो लेट्स सी व्हाट इट इज लाइक. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर माइंडफुल ईटिंग साइकिल. नाउ ये ईटिंग साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है? फॉर सिंपल रीजन, बॉडी का भी क्लॉक है, और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म और ये बाकी सारी चीज़ें होती है वो भी क्लॉक के हिसाब से चलती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ मच एंड वेयर, ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड. सो देखिए, जब हम फूड के बारे में बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट और व्हाट इज़ द बैलेंस मील प्लेट क्या होना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ बैलेंस डाइट इज कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हमारा फूड प्लेट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें होना चाहिए. नाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है? बेसिकली इसमें कार्ब्स होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं जिसको लिपिड्स भी बोलते हैं, इसमें प्रोटीन होता है. नाउ दिस इज व्हाट हैज द मैक्रो न्यूट्रिएंट. माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल एंड फाइटोकेमिकल्स या फाइटो न्यूट्रिएंट ये होना चाहिए. नाउ जब आपकी मील प्लेट में ये सारी चीज़ें होती है, तब उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो फूड के थ्रू कंप्लीट हो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? द मेजर चैलेंजेस इज द अंडरस्टैंडिंग. हम में से कितने लोग ये समझते हैं, या जब हम एक फूड प्लेट को देखते हैं, हम में से कितने लोग ये समझते हैं दैट इज आवर मील प्लेट कंप्लीट? आर वी हैविंग द राइट सेट ऑफ प्रोटीन इन इट, द राइट सेट ऑफ विटामिन, मिनरल, द फाइटोन्यूट्रिएंट, द मैक्रो, माइक्रो, ये सारी चीजें उसमें है क्या? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये नहीं है तो ये उसमें से जो गैप है, दिस गैप इज व्हाट विल लीड टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चैलेंजेस. टेम्परेरी आप उसको मेडिकेशन से ब्रिज कर सकते हो, बट मेडिकेशन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. हेंस हमारा जो फूड प्लेट है वो राइट होना चाहिए. एंड जो आप देख रहे हो सामने स्लाइड में, दिस इज द आइडियल सिनेरियो ऑफ हाउ आवर फूड प्लेट शुड लुक लाइक. नाउ व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, व्हाट आर एक्सपर्ट्स से दैट इनिशियली फ्यू डेज आप पोस्ट करिए अपना फूड प्लेट को, जो भी आप खा रहे हो, सो दैट द एक्सपर्ट्स कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट इन इट. और जब आप धीरे धीरे उसकी रोल समझने लगते हैं, आप उसके रिक्वायरमेंट समझने लगते हैं, दैट्स वेयर द कम्युनिटी हेल्प्स यू टू डिफाइन द राइट फूड प्लेट फॉर यू.
सो द राइट फूड प्लेट इज, उसमें राइट सेट ऑफ विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। ये सारी चीजें जब होगी तो आपका जो फूड है वो बैलेंस प्लेट हो जाता है। Now, a lot of us tend to skip our breakfast. A lot of us, like, हम skip करते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम एक चाय ले लेते हैं, एक रस्क ले लेते हैं, कुछ बिस्किट्स ले लेते हैं, एक टोस्ट ले लेते हैं ना। इमेजिन करिए, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो उसमें नहीं होती है। सो आप फिल तो मतलब वो फुलनेस वाली फीलिंग तो आ जाती है, बट योर प्लेट लैक्स न्यूट्रिशन इन इट। सो होना क्या चाहिए? बेसिकली 50% जो होना चाहिए वो फ्रूट सैलेड्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक अराउंड 30% ऑफ द प्लेट नीड्स टू हैव फ्रूट, 7% ऑफ द प्लेट पल्सेस, एग, फिश, मीट। ये है वो जो ब्रेकअप है। इस तरीके से आपका प्लेट दिखना चाहिए मेनली। नाउ जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी, यू अंडरस्टैंड दिस विद एवरी मील। आपको ये चीज सिखाया जाता है, आप ये चीज देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ design your first meal. Now why it is so important in designing the first meal, because body जो पूरी रात जब आप रेस्ट करते हो, body gets into repair, आपका सेलुलर रिपेयर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे how it functions. So when you get up in the morning, the body is in negative nutritional value. जो body का जो nutritional value है वो negative में होता है। Because वो negative में होता है, it is very very important to have a proper first meal of the day, and hence it is very important to plan your first meal of the day, राइट। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट मील ऑफ द डे में होना चाहिए। सो क्या कर रहे हो आप बॉडी का जो ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो आप अपनी बॉडी को फर्स्ट मील ऑफ द डे से थ्रू देते हैं। A lot of people follow some fasting and all those process, right? And they tend to skip the first meal of the day, and hence your, like, when you kickstart your day, your body is in negative of the nutritional value that the body needs. Easily it is not a good idea to fast during the morning time, right? A lot of people tend to skip their breakfast, especially people who have a मतलब जो जॉब्स के लिए जाते हैं, सुबह रश आवर में होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, people tend to skip their breakfast, and hence it is very important to design your first meal of the day. Next slide, Veda. राइट। सो क्या चीज़ हम इसमें से रिमूव करना चाहिए हमें अपनी प्लेट में से? हमें रिफाइंड कार्ब्स रिमूव करना चाहिए, वाइट ब्रेड, वाइट राइस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि क्यों ब्रेड इज नॉट गुड और बैड। प्रिजर्वेटिव्स ये तो अलाउड है, इसके अंदर जो फूड ग्रेड सब्सटेंस डाले गए ये तो अलाउड है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई लर्न इन दिस प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज, अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, इंग्रेडिएंट है, वो अगर हार्म नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज गुड फॉर योर बॉडी, right? A lot of preservatives. You will not die immediately or in the next couple of days or months if you eat that. But understand, it is not good for your body. Anything that is not coming from a natural source, right? Simple thumb rule ये है, anything that is made in a factory or a plant is not good. And anything that is produced by a plant, right? प्लांट से जो चीज़ निकल के आती है वो हेल्दी होती है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज उसमें ऊपर लिखा हुआ है, वो लेबल कैरी कर रहा है। देखो, लेबल ये कैरी कर रहा है, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी, बट द लेबल नेवर कैरीज कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। फर्क है दोनों में, राइट? सो वाइट ब्रेड, वाइट राइस, वाइट पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऑल दिस थिंग सिंपल। द थियरी इज वेरी वेरी सिंपल। अगर उसमें प्रिजर्वेटिव डाली गई है, अगर वो फैक्ट्री में बना है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट, right? Remove saturated foods, right? Solid fats like butter, coconut oil, whole milk, full fat dairy, ये जो सारी चीजें हैं, one needs to decide and remove this from our food plate. Next slide, Veda. So we need to replace certain things like calorie dense food, food that is high in calorie, low in essential nutrient, right? Very important line to understand. कभी भी अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, is it good in nutrition and does your body need it? Yesterday I was speaking to a principal and he said, I take tea and I take biscuits along with it. And my second question was, does your body need that biscuit? Is it really important? राइट? कई बार हम चाय पीते हैं, नाउ ये हैबिट है हमारी, बट अगर आप बॉडी के एंगल से देखेंगे, बॉडी डजंट नीड दैट टी, राइट? सो
replace foods that are high in calorie, low in essential nutrient, provide quick energy, they often lack the essential nutrient, right? अक्सर आप देखेंगे लोग फूड प्लेट के साथ कोला का एक कैन लेके बैठते हैं. नाउ इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, right? Often highly processed and high in fat, sugar, or both, bad for health and may result in weight gain. Examples include high calorie desserts, processed foods, fast foods, etc. देखिए ये जो कल्चर है रेस्टोरेंट्स का, जो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं दे वांट ए टर्न ओवर, हेंस दे आर ड्राइविंग ऑल द स्टफ, बट इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू. You can replace that with a nutrient dense food which is low in calorie, high in essential nutrient, provides sustained energy while also delivering the nutrient, usually whole unprocessed foods, good for overall well-being. Example include whole grains, whole fruits and vegetables, etc. ये कुछ examples है. आइए आगे देखते हैं, इसका difference देखते हैं, right? Now ये जो आप difference देख रहे हो, on the right hand side you see a single bread pakoda and on the left hand side you see 2 cup of pineapple and 1 cup of blueberries. Probably the calories that both of them carry is more or less same, but understand the nutritional level that they both carry is completely different. Your body would love to take pineapple and blueberries and it doesn't need the bread pakoda. Taste wise, bread pakoda might be good for some, but imagine Kare, what is good for your pancreas, what is good for your liver, and what is good for your health. So you need to learn to make the right choices, you know. So, kya hai? What are some of the don'ts? Some of the don'ts are like avoid refined sugar, avoid junk food, avoid smoking. Uh, Recently, in fact, yesterday only, the principal was telling me that somebody used to smoke a lot, and उनकी theory ये थी कि smoking कैसे lead कर सकती है cardiac arrest को, because वो तो धुआं ही है, मतलब धुआं अंदर जाएगा, it should damage the lungs. हाउ इज इट पॉसिबल कि लंग्स को जो चीज डैमेज करना चाहिए वो हार्ट को डैमेज कर रही है? यू नो, योर बॉडी इज इंटरकनेक्टेड टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू पुट इन योर बॉडी either is pays to the body or your body is paying to it. So you decide, जब choices करते हैं तो उसका impact आपके health पे क्या आता है, right? You need to avoid alcohol, spicy food, caffeine, processed food, calorie dense food. Spend time on screen during the meals and before bedtime. Very, very important thing, right? What are some of the do's that one needs to follow? Eat preferably during the daylight. अभी आगे आने वाले slide में आप देखेंगे कि क्यों ये चीज important है. Eat a diet which is rich in fruits and vegetables. Hence, morning में before your meal, it is advisable to have a bowl of fruit. छोटा सा एक bowl of fruits आप खाइए. Fruit को 12 बजे से पहले खाइए, because आपका जो metabolic health होता है, that is absolutely at its peak level उसके पहले, and hence जो जो वो एनर्जी रिलीज करता है, इट इज गुड फॉर योर बॉडी, राइट? इनकॉर्पोरेट प्रीबायोटिक्स इन योर फूड, स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर. ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि दे आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर टिल द टाइम यू आर नॉट एक्चुअली मेजरिंग इट. जब आप उसको मेजर करना समझेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली आप हाइड्रेटेड हो भी या नहीं हो. च्यू योर फूड थॉरली बिफोर swallowing it. When I actually measured this chewing of the food, my ratio was coming around 4 to 6. Maximum 6 में तो the food was inside, right? हमने बचपन में सुना था we should chew our food 32 times, like why it is so important in mindful eating. जब आप इसको इस प्रोग्राम में आते हैं, when you become a part of the community, you learn this basic stuff that ये जो बेसिक स्टफ है, ये हमारे एक हेल्दी लिविंग में, हमारे लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करती है. Get enough sleep each night. Include one fermented food every day. Exercise regularly. Consume, which is like a nutrient dense food. Opt for plant based food. Give a gap of at least 2 hours before dinner and bedtime. Manage stress through relaxation methods. Right? सो ये कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डूज है जो आप अपने लाइफस्टाइल में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आइए देखते हैं दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईटिंग स्लोली एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो. सो more chews, what it does is it enhances the digestion of nutrients inside your body. Fewer calories are consumed, increased water consumption, reduced risk of diabetes and metabolic disease, less likely to become overweight, decreased snacking later, and fuller longer. ये कुछ जो स्लो ईटिंग के जो बेनिफिट्स हैं, विच इन्वॉल्व्स chewing food slowly and thoroughly, is an effective strategy for controlling appetite in order to avoid being overweight or obese.
Slow eating also has the effect of increasing postprandial energy expenditure, basically diet included in thermogenesis. सो एक अलग ही सेशन होता है जिसमें हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को डिस्कस करते हैं एंड हाउ इट हेल्प्स यू to maintain your weight and all those stuff. Hence, if you'll see that eating also matters a lot and how it can have. Like, now, what are the four ways of slow down your eating? आप कैसे इसको slow कर सकते हैं? Basically, these are some of the tips that you can follow. Don't stand and eat out of a box, बैग और अ कार्टन, राइट? कई बार हम ऐसे होता है कि हम जल्दी में कहीं खड़े होकर खाते हैं, ऑल्दो हम पोर्शन तो खा लेते हैं, बट जो माइंडफुल ईटिंग होती है, ब्रेन को मैसेज नहीं जाता कि हमने खा लिया है। एंड इसीलिए आप देखेंगे यू टेन टू ईट मोर कंपेयर टू वॉट योर बॉडी नीड्स, राइट? ईट फूड्स दैट टेक लॉन्गर टू ईट, डू नॉट ईट वाइल डूइंग अदर थिंग्स, put your spoon down between the bites. These are some of the examples, right, that you can follow and in eating slowly, right? Now, next, when to eat, listen to your inner clock. Very, very important subject. नॉर्मली इंडियंस में हमने देखा है कि अब तो हम 8:30 9 o'clock को भी हम अर्ली डिनर मानने लगे हैं, right? Because most of the late night parties and all those stuff, because we see so many people around us who are eating like around midnight में भी चल रहा है, restaurants are open till 4 a.m. in the morning, Swiggy Zomato are doing delivery till late night, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा कि अगर हम 8 बजे रात को खा रहे हैं तो ठीक खा रहे हैं, पहला। सेकेंड, कहीं ना कहीं हमने लेट नाइट ईटिंग को फैमिली टाइम से एसोसिएट कर दिया, सो वी फील दैट व्हेन एवरीबॉडी इज अराउंड टुगेदर, दैट्स द टाइम टू ईट लेट नाइट डिनर, right? That's the family time. But we are paying a huge consequence of this. Our liver health is getting compromised, our pancreatic health is getting compromised. Mostly the people who tend to have a dinner post 7 p.m., आप उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखिए, आप उनके सी रिएक्टिव प्रोटीन देखिए, आप उनके बेली फैट एरियाज देखिए, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट इवनिंग ईटिंग, राइट? सो आइए देखते हैं कि नाउ डू यू नो देर इज अ क्लॉक इनसाइड आवर बॉडी एंड डिड यू एवर नोटिस इट? सो जो हमारा पूरा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये भी एक क्लॉक फॉलो करता है, राइट? ये भी एक प्रोसी ये एक प्रोसीजर फॉलो करता है। नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में, जो सनराइज टू सनसेट का टाइम है, विच मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, it supports and activates, right? Maximum coordination, high concentration, metabolic rate is at its best, body consumes energy body needs, but post sunset body gets into a phase which is repair and rebuild. नाउ इमेजिन करके देखिए, अगर ये फेज में इफ यू आर फीडिंग योर बॉडी, द बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो रहता है, बॉडी हैज टू परफॉर्म अदर एक्टिविटीज। नाउ दिस इज लाइक प्लेइंग विद अ डबल एज स्वॉर्ड। नंबर वन, इफ यू आर फीडिंग द बॉडी, नंबर वन योर डाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? सेकेंड प्रॉब्लम है, बॉडी को जो एक्चुअली रिपेयर एंड रिबिल्ड करना था वो भी नहीं वो कर पा रहा है। सो एक्चुअली बॉडी को जो दोनों फंक्शन है वो दोनों नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज वेयर वी गेट इन टू दैट ट्रैप, राइट? सो आंसर क्या है? नाउ आंसर ये है, मेन इनर क्लॉक एंड इंडिविजुअल क्लॉक। सो देर इज एक बॉडी का क्लॉक फॉलो करता है और एक आपके ऑर्गन्स भी क्लॉक फॉलो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका लीवर भी एक सर्काडियन रिदम फॉलो करता है। सो देर इज अ मेन क्लॉक विच इज योर ब्रेन, विच इज लाइक सनराइज हो गया, जग जाओ, सनसेट हो गया, सो जाओ, रात हो गई, एक बॉडी ब्रेन क्लॉक फॉलो करता है। बट आपके जो वाइटल ऑर्गन है, एक्चुअली ये भी क्लॉक फॉलो करता है, राइट? नाउ लाइट है जो हमारे मेन क्लॉक को ट्रिगर करता है, और उसी के बेसिस पे आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, ये सारी चीजें फॉलो करती है। सो व्हाट आर सम ऑफ द बॉडी फंक्शंस विच इज रेगुलेटेड बाय योर बॉडी क्लॉक, राइट? सो बॉडी के कौन से फंक्शंस है जो हमारा बॉडी क्लॉक कंट्रोल करता है? स्लीप क्वालिटी, योर माइंड का जो अलर्टनेस है, फोकस है, आपके जो हॉर्मोन्स है विच इज लाइक स्ट्रेस हार्मोन, योर ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीजों को बॉडी क्लॉक कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर आपका बॉडी कंट्रोल करता है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन, हार्ट रेट, हंगर, ये सारी चीजें बॉडी क्लॉक कंट्रोल करता है। ना इमेजिन करके देखिए, अगर डाइजेशन है, न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन है, अगर आप उसको मिस अलाइन कर देंगे तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इट विल हैव ऑन योर बॉडी? ऑब्वियसली देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गन हेल्थ एंड सेलुलर हेल्थ। नाउ ये जो इम्पैक्ट है, नाउ व्हेन यू गो टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर दिस इश्यूज, टेम्परेरी वो आपको दवाई दे देगा। टेल मी वन थिंग, हम में से कितने लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब, आई डोंट वांट टू फॉल सिक रेस्ट ऑफ माय लाइफ, कैन यू गिव मी सम
some game plan. What do you think? What answer are you going to get? सोच के देखिए. सो कई बार क्या होता है, हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने आउटसोर्स कर दिया है. हमने इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दी है, कहीं ना कहीं हमने फिटनेस ट्रेनर्स के भरोसे छोड़ दी है. वी डोंट वांट टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इट. एंड सिंस वी आर क्रिएटिंग इट, we are looking for answers here, there, everywhere, but not inside us. And hence फर्ज करके देखिए कि अगर आपके बॉडी क्लॉक का ये कॉन्सिक्वेंसेस है, दैट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर डाइजेशन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, हार्ट रेट, हंगर. इमेजिन करिए अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हो तो डोंट यू फील दैट यू विल हैव अ ग्रेट हिल स्पैन इन कोऑर्डिनेशन विद योर लाइफ स्पैन. सो हो क्या रहा है, हम 100 साल तक तो जीना चाहते हैं, हम सबकी इच्छा है कि हम 100 साल तक जीना चाहते हैं, बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ? नाउ इफ यू डोंट गिव फोकस टू दिस पॉइंट नाउ, probably you will have a lifespan, but the health span will be more dependent on the medication. Now medication is not bad, but it is to be taken only on a SOS basis. ये सारी चीजें के लिए medication cannot be a substitute. Hence we need to own this subject, right? So, right now, as we have understood about the inner clock and its functioning, now let's use it to optimize our health by focusing on when to eat. तो ये जो आप देख रहे हो कि बॉडी का जो साइकिल है, जो सर्काडियन रिदम है, वो कितने बजे कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गेट इन टच विद द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू ओवर हियर. एंड ऑल्सो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, व्हेन यू जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी on a everyday basis, we are learning from each other. You know, there are some 100+ people in that community. और जब भी कोई एक टिप किसी को दी जाती है, it is also an opportunity for others also to learn from it. And hence it becomes great platform where we all are learning from each other's experience. Right? ये बहुत important हो जाता है because health cannot be understood in isolation. It is better understood when you become a part of the community. So ये जो सारी चीज़ आप देख रहे हैं, that at what time the body has to perform those function, it has to release those hormones for those relevant functions in the body. इसीलिए the body clock is very very important. So आइए देखते हैं when to eat, the food clock basically. So type of food and time of food, right? So your fat, protein, carbs is more required during the morning time because they are better utilized by the body. Now imagine करके देखिए कितने लोग हैं जो early morning में they are having a proper full course breakfast which is rich in vitamin, mineral, protein, omega 3 fatty acids, phytonutrient, ये सारी चीजों के साथ rich है. और अगर वो नहीं है, so what cost are you paying in the longer run, right? सेकेंड, इवनिंग में अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो डिनर टाइम इज माय फैमिली टाइम, लेट्स हैव अ प्रॉपर फूड. इट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, योर डायबिटिक लेवल इज बाउंड टू गो हाई. इट इज बाउंड टू गो हाई. सो आप अपना जो सुबह का फास्टिंग शुगर वैल्यू देखेंगे, इट इज गोइंग टू टेंड टू बी हाई. योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, योर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल आर बाउंड टू बी हाई, right? Your liver will fall under the fatty liver grade category. So ये होना ही है. और फिर आप उसको चाहे जितनी दवाई खा लीजिए, आप उसको टेम्परेरी अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ यू वांट देम टू बी अंडर कंट्रोल, राइट? सो डे वर्सेस नाइट का कंपैरिजन क्या है? Is morning nutrition critical, right? Absolutely, it is very very critical. Because जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है, जो आपका गट हेल्थ है, राइट, दैट नीड्स टू बी बेटर. आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड जो प्रोटीन है बॉडी नीड्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली द वे fuel is to the car, the same way food is to the energy, right? Converting food into energy, that is what metabolism's role. So जैसे fuel गाड़ी को पावर देता है, वैसे ही जो कन्वर्ट करके जो फूड से जो हम एनर्जी लेते हैं, that is what is metabolism. Now इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ऑन द रेट वेरिएशन एज पर द डे एंड नाइट, right? Night time at a factory where there is less activity and things move at a slower pace. इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रात को जो फैक्ट्री है उसमें कम काम होता है तो जो पेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है. वर्सेस ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम व्हेन द पेस इज हायर एंड यू टेंड टू सी एवरीथिंग इज लाइक जस्ट मूविंग absolutely perfect pace. Now this is how it impacts your body inside your body also. So your body rest in the evening. Easily it needs less food versus what it needs in the morning.
हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि हमारी फास्ट पेस लाइफ होती है, तो हम क्या करते हैं, हम मॉर्निंग को स्किप करते हैं, एंड वी स्टार्टेड गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू द इवनिंग, राइट? दिस थॉट नीड्स टू चेंज, एंड दिस इज वेयर द कम्युनिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस होल थिंग. Protein shortage. Night mein, the body has to perform a lot of repair, cellular repair related stuff, right? It needs protein for it. एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे कि बॉडी रात को रिपेयर करता है अपने आप को, वर्सेस दिन में वो अपने आप को एक्टिवेट करता है. सो नाउ रिपेयर एट नाइट रॉ, सो इट्स लाइक, अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक हाउ यू मेंटेन द बिल्डिंग एंड ऑल, राइट? सो रात को इट्स रिपेयर एट नाइट, सो रॉ मटेरियल्स आर लाइक प्रोटीन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग. सो अगर आप बॉडी को एक बिल्डिंग की तरह देख रहे हैं, सो द प्रोटीन दैट वी कंज्यूम इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेलुलर हेल्थ, राइट? And इसीलिए अगर आप देखें, when you get up in the morning, your nutrition level is low. And because your nutrition level is low, we have to kickstart the day. Hence, it becomes very, very important to like focus on the morning breakfast, right? And very low on the night food. So आइए देखते हैं that what is insulin, you know. Now, इंसुलिन को समझने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है. व्हाट इज इंसुलिन? बॉडी को, बॉडी सेल्स में एनर्जी की तरह फैट को स्टोर करती है, राइट? वो उसको ग्लूकोज को स्टोर करती है इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. लेकिन उसको जाने के लिए इट रिक्वायर्स इंसुलिन. पैनक्रियास प्रोड्यूस द इंसुलिन दैट द बॉडी, जो सेल उसको जो फैट्स है उसको स्टोर करने देता है. सो अगर इंसुलिन को आपको समझना है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू नो. सो इट्स लाइक, आप ऐसे देखिए कि अगर कार है और आपके घर के आगे एक लेन है. नाउ अगर हम सपोज 100 कार को खड़े कर दें आपके घर के आगे, और वो लेन बहुत छोटी सी है, सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रश, राइट? हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम फूड को ब्लेम करने लगते हैं कि यार गाड़ियां हैं. लेकिन आप फर्ज करके देखिए कि एक बहुत अच्छा लंबा स्ट्रेच एक्सप्रेस वे है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू लिव इन मुंबई, सो मुंबई टू पुणे का एक एक्सप्रेस वे है, और सेम गाड़ियों को अब आप उस एक्सप्रेस वे पे स्प्रेड कर दीजिए. देर इज नो रश. So what it means is, it is important to understand that how many cars were there, but it is also important to know that उसका spread कितना है. Similarly, हमारे body में what we eat makes a big difference in insulin control. इसीलिए अक्सर अगर आप लोगों को देखेंगे कि जो लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, नाउ 8 o'clock, ट्रस्ट मी, इज अ लेट नाइट डिनर. 8-8:30 इज लेट नाइट. हाँ, इट इज नॉट. अगर आप 2 बजे रात को सो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि 8 बजे जल्दी है. पोस्ट 6:37 एवरीथिंग इज लेट. सो इमेजिन करिए कि जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग इज व्हाट दिस रश दैट यू सी इनसाइड योर बॉडी, एंड दिस इज व्हाट इट, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल है उस चीज का, कि अगर उसकी टाइमिंग और स्ट्रेच सही है, अगर उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड सही है, तो इट योर इंसुलिन कैन आल्सो बिहेव मच बेटर वे. Let's also understand our gut microbiome, because gut is the second brain. गट हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसीलिए जब आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, तो व्हाट यू सी इज, वी सी अ गट रीसेट प्रोग्राम, और द गट हेल्थ इज बीन गिवन अ वेरी मच इंपॉर्टेंस. सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा गट है, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है. नॉर्मली what it should be, your 85% of the bacteria needs to be good, and your 15% bacteria are the bad bacteria inside the gut. But because of the habits that we form, because of the habits that we follow, the food type, food eating habits and all those stuff, धीरे धीरे क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया वो धीरे धीरे मरने लगता है, और बैड बैक्टीरिया ऊपर आ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस होता है, गट हेल्थ प्लेज अ मोस्ट वाइटल रोल इन इट. एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए वेर योर गुड बैक्टीरिया इज ऑन द हायर साइड एंड द बैड बैक्टीरिया इज ऑन द लोअर साइड. वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज, यू नेम एनी डिजीज, एंड गट हेल्थ इज द मेन रीजन, जो बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्ट्स, यू नो. सो फोकसिंग on gut health is the most important thing. And जो food timing and the food choices that you make बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं in defining your gut health. सो हेंस वेन एवर यू विल सी दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गट हेल्थ, और गट हेल्थ के ऊपर आप अलग से सेशन देखोगे. सो नाउ व्हाट इज द गट फिजियोलॉजी एंड योर बॉडी क्लॉक, यू नो. सो अगर आप देखेंगे तो स्लीप फ्लक्चुएशन, ब्रेकफास्ट स्किपिंग, मोर बैड बैक्टीरिया,
राइट? अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, ये सारे जो हैबिट्स होते हैं, ये डिफाइन करती है कि इज आर गुड बैक्टीरिया इंक्रीजिंग और द बैड बैक्टीरिया इंक्रीजिंग। स्किन रिलेटेड इश्यूज, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज। अभी रिसेंटली मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा था कि कैन थायराइड बी रिवर्स्ड? And I said, look, there is no direct answer to this, but there is a lot of indirect answer to this. And in a way, what I wanted to say, yes, thyroid can be reversed. Or not only thyroid, any lifestyle disorder can be completely reversed because वो lifestyle हम create कर रहे हैं, and hence that can be sorted out, right? So this is what it is. Now, the most important subject, why morning nutrition? सो हमने व्हाट टू ईट के बारे में हमने बात कर लिया, व्हेन टू ईट के बारे में हमने बात कर लिया, बॉडी क्लॉक के बारे में हमने समझ लिया। आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, द व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप हर घंटे में इसके वैल्यूबल इनपुट्स आप देखते हो, एंड समथिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर डेली हैबिट्स इज व्हाट यू फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एंड वंस यू मेक द राइट चॉइसेस, you never have to worry about health span versus your lifespan. you know फारूक का जो मंत्रा है इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू, हर घर तंदुरुस्त हर घर मेडिसिन फ्री, व्हाट इज ट्राइंग टू डू, इज ट्राइंग टू से दैट बॉस, अगर 100 साल तक जीना है तो कैन वी लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ टिल देन? बिकॉज गॉड क्रिएटेड ऑल ऑफ अस टू लिव टिल 120 years ऑफ एज। बट आप सोच के देखिए, क्या हमारा अप्रोच है टू हैव अ हेल्दी लाइफ टिल दैट ईयर्स ऑफ एज? या कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इट्स ओके टू फॉल सिक, इट्स ओके टू हैव मेडिकेशन, यू नो इट्स ओके ओनली इफ इट इज लाइक कुछ ऐसी चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर मलेरिया हो गया है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं था, अब मलेरिया हो गया, नाउ यू शुड टेक अ मेडिकेशन। बट अगर आपको डायबिटीज हो गई है और यू आर प्री डायबिटिक, देन बॉस, you need to take charge and you need to make some right corrections in your lifestyle. So why morning nutrition is important? Because in the morning when you get up, your metabolic rate is already like it is low. Your protein balance in the body is absolutely low. Your insulin sensitivity and glucose tolerance are low. Hence, कई बार हम जब fasting sugar level देखते हैं, तो that fasting sugar level is high. ऑल्ट्रेशन इन योर गट बैक्टीरिया। सो हेंस ये सारी चीजें को अगर आप देखोगे, सो ओवरनाइट में क्या होता है, यू आर फिजिकली इनएक्टिव, योर बॉडी इज रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग इटसेल्फ, राइट? सो ये जो सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं, जो हार्मोन्स उसने रिलीज करनी है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, सो हेंस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिकम्स एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स व्हाट विल हैपन नाउ, इफ यू फोकस ऑन योर ब्रेकफास्ट एंड देन यू हैव टेकन अ प्रॉपर लंच, इवनिंग तक ऐसे भी खाने का मन नहीं करेगा आपको, बिकॉज जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो इसी तरीके से जाता है। सो अगर आप बॉडी क्लॉक को, अपने फूड क्लॉक को अलाइन कर लो, यू विल हैव अ ग्रेट हेल्थ, ट्रस्ट मी, राइट? सो morning nutrition is also equivalent to health. Now, regular intake of breakfast leads to a healthy state of body, and regular skipping of breakfast creates a lot of health issues, right? So, you know, what to eat, when to eat, the importance of body clock, and the morning nutrition. In fact, we are running a different program altogether for morning nutrition because we feel the morning breakfast is the most skipped element in this fast-paced life. आप बच्चों को देखिए, आई मीन, आई वंडर हाउ कैन दे स्लीप टिल 10 AM इन द मॉर्निंग, एंड अगर वो 10 बजे तक सुबह तक सो रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए उनके ब्रेकफास्ट को क्या हो रहा है। सो बॉडी क्लॉक को क्या हो रहा है, और ये सारे जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, समवेयर इट स्टार्ट्स विद योर लीवर हेल्थ, पहले कॉम्प्रोमाइज होता है, देन पैनक्रेटिक हेल्थ पे इंपैक्ट आता है, फिर धीरे धीरे अगर आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स को देखेंगे तो योर ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल स्टार्ट गोइंग हाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल रीड देयर रिपोर्ट एंड दे फील, बिकॉज वो दोनों ब्रैकेट के बीच में वो नंबर देख लेते हैं, दे फील दैट सब कुछ ठीक है। वो ठीक है बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डाई, but directionally it is not right, because directionally the practices that you are going to choose now is going to make a difference, that in the later stages of life, will you be medical dependent or will you have a medicine free life, right? So let's come to the last slide, and that's shine, right? Now, what does that mean? Why do we want everybody to shine? Start your everyday with gratitude and optimism. It's very important in today's environment, जहाँ पे there is so much of negativity all around us. At least there is, you need to deliberately adapt the programs जो आपके mind, body और health को better करने में आपकी मदद कर रहा है. Have your nutrition, very very important subject. The food, इतने choices, ये वो सारी चीजें हो रही है, but in all these things, what is the biggest missing element? It's the nutrition.
A lot of time people ask this question, ki, but my so-and-so suggested me not to have any supplements. Yes, supplements are not good if it is synthetic, because if it is synthetic it is going to leave a residue in your body. But because हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे, हम खेत एक गंगा मतलब एक एकदम ही पोल्यूशन फ्री जोन में नहीं रह रहे, वी डोंट हैव द चॉइस. Hence, to bridge that gap we need to have nutrition, and the best way to bridge that gap is to have the right pure organic supplements, right? Have your intentions and have a clear goal. Today morning I was speaking about a health report with Farooq, and the first thing that Farooq asked me, that what is the goal of this person? Because somewhere in the later stages of our life हम ये accept कर लेते हैं, it is okay to fall sick, it is okay to have medication, ये तो होता ही है, ये तो होगा ही. But it is very very important to have a clear intentions about your goal. It's only after coming into this program I realized the importance of health, and why it is important to have a health goal. ये पहले नहीं था. पहले मुझे ऐसा लगता था you should have good connections with doctor, and it is okay to have like क्या बोलते हैं, it's okay to have इंश्योरेंस, और जब जरूरत पड़े उनके पास चले जाइए. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. I picked up a couple of points today while sharing this presentation. And the most important, exercise daily. People die in a gym because they don't exercise properly. या उसके बारे में exercise के ऊपर आप अलग से subject सुनेंगे. But it is very important to give the body the right set of exercise, not too less, not too more. राइट द एब्सोल्युटली. सो अगर आप बॉडी को राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन देंगे, राइट सेट ऑफ रेस्ट देंगे, राइट सेट ऑफ एक्सरसाइज देंगे, और राइट सेट ऑफ माइंडसेट देंगे, द बॉडी हैज द पोटेंसी कि वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है और आगे लेके जा सकता है. सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच. आई लव प्रेजेंटिंग दिस होल थिंग टू यू. आई होप यू पिक्ड अप समथिंग वेरी वेरी वैल्यूबल. ओवर टू वेदर. थैंक यू. Wow, thank you so much, Raj. And with your, this is this exact same passion, this is the exact same knowledge, this is the exact same clarity that helped me begin my health journey, improve my health, and we are continuing on this journey. Well, I hope you have taken notes. I hope, because notes help you, remind yourself. But even so, even if you don't remember, please do share your plates on the, on the group, on the WhatsApp community. Share your health goals, because if you don't set your health goals, and Farooq is to be very, very insistent on us setting goals. If you don't set your goals, life will just go on as it is. Okay, so that's it from us for tonight. We will come back to you on Monday with the session on gut health and gut reset. So be there, keep the reminders in your calendars, and we'll see you then. Take care. Good night. God bless.